Assalamu alaikum and hello everyone, welcome back to my channel. Today we are studying about the asexual production and the types of the asexual production, which we can also say the mechanism involved in the asexual reproduction. So what is the asexual production? It is a type of reproduction या production in which one or more offsprings are produced in from a single parent. कि एक ही parent से एक या एक से ज़्यादा offspring produce होती हैं. So that type of reproduction is known as asexual production. This reproduction does not involve the fusion of gametes, and this type of reproduction is accomplished by different mechanisms of different organisms. So let's study about those different mechanisms which is involved in different organisms. So first talking about the binary fission, guys, what is the fission? Keep in mind fission का मतलब होता है टूट जाना, split हो जाना, ठीक है? We are talking about splitting, ठीक है? यहाँ पे split हो जाएगा. So binary fission occurs in the lower organisms like जो unicellular organisms हो गए या फिर unicellular eukaryotic organisms, उनमें binary fission का process होता है. अब most common ये है यूग्लिना में, अमीबा में, क्लामिडोमोनास में एंड बैक्टीरिया में. ये बहुत ज़्यादा binary fission का process common होता है. Let's take the example of the bacteria in the binary fission. What happens? Check out here कि एक बैक्टीरिया है. बैक्टीरिया is prokaryotic. Prokaryotic organisms are those organisms which do not have the well-defined nucleus. So the bacteria have the chromatin material, which is shown over here. This bacteria, before dividing into two daughter cells, the DNA of the bacteria will replicate. Now it has the replication of the DNA has occurred. The chromatin material has replicated. So the cytoplasmic membrane elongates, separating the DNA molecules. They see the cytoplasm membrane, like cell membrane. We are talking about the cell membrane. It has elongated and it has separated the DNA molecule. Cross walls form membrane and invaginate. Now this membrane has started invagination inside. ठीक है, ये invaginate अंदर की तरफ invagination ये start कर देगी. Now after the invagination, ये जब invagination complete हो जाएगी, so the two daughter cells will be separated from each other and two daughter cells are formed, and then each daughter cell will start their independent life, grow and then डिवाइड अगेन. ठीक है, तो वो दोबारा से डिवाइड होने के लिए तैयार हो जाएगी. तो क्या था, सिंपल सा प्रोसेस है कि इसका जेनेटिक मटेरियल जो था, जो क्रोमेटिन मटेरियल है, वो रेप्लिकेट हो जाएगा, डबल हो जाएगा. जब वो डबल हो जाता है तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो इलोंगेट हो जाती है, ताकि इसका जो डीएनए है, जो जेनेटिक या क्रोमेटिन मटेरियल है, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाए. जब वो सेपरेट हो जाता है तो क्या होता है कि इसकी जो मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होने लगती है, अंदर की तरफ धंसने लग जाती है. और जब इसकी इन्वेजिनेशन कंप्लीट होती है तो एंड में रिजल्ट में दो बैक्टीरिया जो टू डॉटर सेल मिलते हैं. हर डॉटर सेल जो है वो इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारता है, ग्रो करता है और दोबारा से डिवाइड होने के लिए तैयार हो जाता है. This is about the unicellular prokaryotic organism. Now we are talking about the unicellular eukaryotic organism. Eukaryotic organisms are those which have the well-defined nucleus, membrane-bounded nucleus. So we are taking the example of amoeba. It also occurs in the euglena. Okay, they reproduce asexually by the binary fission. And amoeba is a member of kingdom Protista. ठीक है, bacteria is a member of kingdom Monera. We have taken the example from the kingdom Monera, and now we are taking the example from kingdom Protista. So what happened in this process? First, the nucleus of the parent organism divides into two. It starts dividing into two. After the division of the nucleus into two, the fusion, this cytoplasm, division of the cytoplasm occur. ठीक है, तो cytoplasm occur and it will result in the two equal organism. ठीक है, और two daughter cells of almost equal size are formed. क्या हो गया था कि अमीबा था, अमीबा जो है उसने डिवाइड होने से पहले उसका जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया दो में. ठीक है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म का जो न्यूक्लियस था फर्स्ट इट डिवाइड्स इनटू टू. उसके बाद क्या हो गया कि उसमें साइटोप्लाज्म की डिविजन स्टार्ट हो गई. जब साइटोप्लाज्म की डिविजन स्टार्ट हो गई तो उसने रिजल्ट किया टू डॉटर सेल को जिनका साइज ऑलमोस्ट इक्वल है. इसके रिजल्ट में हमारे पास दो ऑर्गेनिज्म ऑफ इक्वल साइज फॉर्म हो गए हैं. सो गाइस कीप इन माइंड कि जो बाइनरी फिशन का प्रोसेस होता है इट अकर्स इन द नॉर्मल कंडीशन, फेवरेबल इन्वायरमेंट. ठीक है, तो फेवरेबल इन्वायरमेंट होगा तो बाइनरी फिशन इस तरह प्रोसेस होगा. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द मल्टीपल फिशन. सो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द बाइनरी फिशन एंड द मल्टीपल फिशन. कीप इन माइंड मल्टीपल फिशन आल्सो अकर्स इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है बट इट अकर्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन. आई एम स्ट्रेसिंग ऑन द पॉइंट that multiple fission occurs during unfavorable condition while binary fission occurs during favorable condition. जितना favorable condition होगा उस टाइम पे binary fission होगा, और जब environmental या favorable condition नहीं है, किसी भी टाइप का चेंज है जो कि उसके सर्वाइवल के लिए
हार्मफुल है वो सर्वाइव नहीं कर सकता उस चेंज में, तो उस टाइम पे मल्टीपल फिशन का प्रोसेस होगा. सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द मल्टीपल फिशन, आई एम ऑल्सो टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ अमीबा इन द मल्टीपल फिशन. मल्टीपल फिशन में क्या होता है कि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये अनफेवरेबल कंडीशन में हो रहा है. इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे देखें, ये जो ऑर्गेनिज्म होता है इट स्टार्ट डेवलपिंग अ सिस्ट अराउंड इटसेल्फ. ये क्या करता है, अपने इर्द गिर्द एक शेल बनाने लगता है, एक कवरिंग बनाने लगता है. ये कवरिंग क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जस्ट लाइक द स्कल ऑफ योर हेड. कि स्कल क्या करते हैं, वो आपकी ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे. इस तरह ये सिस्ट जो होता है, ये सिस्ट इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है. ये प्रोटेक्टिव कवरिंग जो सिस्ट है, इसके अंदर ही जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड एंड रीडिवाइड होता रहता है और बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियर बन जाते हैं. यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियर बन गए हैं, क्योंकि ये एक ही न्यूक्लियस है जो डिवाइड हो गया और रीडिवाइड हो गया. देन क्या होता है कि जब ये डिवाइड एंड रीडिवाइड हो जाता है तो हर न्यूक्लियर के इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन बननी शुरू हो जाती है. हर न्यूक्लियर के इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन बन गई है. नाउ जब सेल मेम्ब्रेन बन जाती है और फेवरेबल इन्वायरमेंट आ जाता है, फेवरेबल कंडीशन आ जाता है, ठीक है. अनफेवरेबल कंडीशन में स्टार्ट हुआ था ये, लेकिन नाउ द इन्वायरमेंट हैज बिकम द फेवरेबल फॉर देयर ग्रोथ. तो इनकी सिस्ट क्या होती है कि इनकी सिस्ट जो है ये ब्रेक हो जाती है और जो स्मॉल ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो लिबरेट हो जाते हैं. और ये जो ऑफस्प्रिंग है ये दोबारा रिलीज जो हो गए थे, जो डॉटर सेल्स थे रिलीज हो जाती है, ये ग्रो करती हैं एंड दोबारा रीडिवाइड होने के लिए या एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने के लिए तैयार हो जाती है. सो ये था आपका बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन. द मेन डिफरेंस इन दोनों में क्या है कि ये फेवरेबल एनवायरनमेंट में हो रहा है और दिस अकर्स इन द अनफेवरेबल कंडीशन. तो अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिशन होगा और फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिशन होगा. बाकी इनका प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन द डिफरेंस इज कि अनफेवरेबल कंडीशन में ये सिस्ट फॉर्मेशन करेगा और उसी के अंदर ही जो न्यूक्लियर होगा वो डिवाइड एंड रीडिवाइड होगा. एंड द वन मोर डिफरेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि वन और मोर ऑफस्प्रिंग, यहाँ पे अमीबा ने 2 ऑफस्प्रिंग बनाई थी, जबकि मल्टीपल फिजन में उसने बहुत सारी ऑफस्प्रिंग्स को जनरेट कर दिया है, उसने उसको प्रोड्यूस कर दिया है. So guys, I hope so you have understand the topic. In case of any confusion, you can ask the question from me in the comment box below. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Allah Hafiz.